ایک ماں جس نے بیٹی کے قاتلوں کو اپنی آغوش میں دفن کیا۔ جب بیٹی کے جسم پر زخموں کے نشان ہوں تو ماں کا دل دعا نہیں کرتا، بد دعا بن جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے امبیکا کی، ایک عام سی عورت جس کی دنیا صرف ایک انسان سے جڑی تھی، اس کی اکلوتی بیٹی شویتا۔ شویتا ہنستی تھی تو یوں لگتا جیسے موسم بدل جائے گا۔ محلے کی ہر آنکھ اس پر فخر کرتی اور ماں تو اسے آنکھ جھپک کر بھی دیکھنے سے ڈرتی، کہیں رب کو اس کی خوشی سے حسد نہ ہو جائے۔ ایک دن شویتا کالج سے واپس نہیں آئی۔ پہلا گھنٹہ ماں نے گھبراہٹ میں گزارا، دوسرا ماں نے سڑکوں پر گزارا، تیسرے گھنٹے میں امبیکا پاگل ہو گئی۔ رات کے 11 بجے پولیس نے فون کیا، ایک لڑکی کی لاش ملی ہے، نام شویتا۔ لاش نہیں تھی، ماں کی روح کا کچلا ہوا ٹکڑا تھا، جسم کے ہر حصے پر زخم، ہاتھ باندھے ہوئے، اور چہرے پر وہی مسکراہٹ جو کبھی امبیکا کے لیے جینے کا سہارا تھی، اب موت کی چٹان بن گئی۔ قاتل 3 لڑکے، شہر کے بااثر سیاستدان کے بیٹے اور ایک کاروباری گھرانے کا وارث۔ پولیس نے کہا ثبوت نہیں ہے، کیس کمزور ہے، بیٹی واپس نہیں آئے گی، بہتر ہے بھول جائیں۔ امبیکا ہنسی، نہ پاگلوں جیسی نہ روٹی ہوئی، ایک ایسی ماں کی ہنسی جو دل میں ایک طوفان چھپا چکی ہو۔ امبیکا نے ماتھے پر شویتا کی تصویر کا تلک لگایا اور قسم کھائی، جب تک ان تینوں کی چیخیں زمین کے نیچے نہ سنائی دیں تب تک میں زندہ رہوں گی اور ان کے قریب رہوں گی۔ پہلا لڑکا ویر سنگھ۔ امبیکا اس کے گھر کام کرنے والی نوکرانی بن کر داخل ہوئی۔ 6 مہینے روز اسے پانی دیا، کھانا دیا، اور ایک دن اسی کے مشروب میں تیزاب ملا دیا۔ ویر کا گلا ایسا جلا کہ وہ موت سے پہلے 50 بار مر گیا۔ دوسرا ارجن ٹھاکر، ہوٹل کا مالک۔ امبیکا نے اسی ہوٹل میں باورچی بن کر نوکری لی۔ اکیلا پایا، ایک دن اس کا چہرہ تیزاب سے جلا دیا اور جسم کو ایسے جلایا کہ شناخت ممکن نہ رہی۔ تیسرا سب سے چالاک، سب سے چھپا ہوا۔ جب 2 دوست مر گئے، اسے لگا ماں کچھ کر رہی ہے، وہ شہر چھوڑ گیا۔ امبیکا نے بھی شہر چھوڑا۔ مہینوں بعد ایک پہاڑی ریزورٹ میں ریشی کو ایک بڑیا نے لفٹ دی۔ وہی امبیکا تھی جو اب مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ راستے میں گاڑی ایک ویران جگہ پر روکی اور ریشی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا۔ ریشی کا آخری جملہ تھا، میں معافی مانگتا ہوں۔ امبیکا نے جواب دیا، معافی تو میری بیٹی نے مانگی تھی اس رات، تم نے دی۔ امبیکا ایک یتیم خانے کی منتظم ہے جہاں وہ زخمی بچیوں کو تحفظ دیتی ہے۔ شویتا کی تصویر اس کے کمرے میں آج بھی روشن ہے۔ یہ دنیا اسی دن بدلے گی جب ماں کی خاموشی کو کمزوری سمجھنا بند ہو جائے گا۔ کبھی کسی لڑکی کی چیخوں کو ہلکا مت سمجھنا، کیونکہ اگر اس کے جسم کو تم روند دو تو ماں تمہاری روح روند دے گی۔ ماں صرف جنم نہیں دیتی، ماں انصاف بھی دیتی ہے۔ کبھی جو واپس آتا ہے وہ نہیں ہوتا جو گیا تھا۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا، بارش تیز تھی، آسمان پر بجلی چمک رہی تھی۔ آریہ کھڑکی کے پاس بیٹھی اپنے والد کی تصویر کو گھور رہی تھی۔ 3 دن پہلے اس کے والد رچرڈ ایک پراسرار حادثے میں مارے گئے تھے، لیکن آج کی رات کچھ ایسا ہونے والا تھا جو آریہ کی پوری زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ جنازے کے اگلے دن گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ آریہ کی ماں ایلسا ہر وقت سہم کر بیٹھی رہتی، چھوٹا بھائی جوش بات بات پر رونے لگتا، اور آریہ اسے بس ایک سوال تنگ کر رہا تھا، پاپا کو اتنی بری حالت میں کیوں پایا گیا؟ اور ان کے جسم پر وہ سیاہ نشان کیا تھا۔ رات کے 3 بجے گھر کے مرکزی دروازے پر دستک ہوئی۔ ایلسا نے خوفزدہ ہو کر دروازہ کھولا، سامنے رچرڈ کھڑے تھے۔ رچرڈ، میں واپس آ گیا ہوں، اس نے دھیمی سرد آواز میں کہا۔ ایلسا کی چیخ نکل گئی، لیکن آریہ اور جوش خوشی سے لپٹ گئے۔ پاپا واپس آ گئے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ جو آیا ہے وہ پاپا نہیں تھا۔ بدلتی آنکھیں، عجیب خوشبو۔ کئی دنوں بعد آریہ نے محسوس کیا کہ پاپا کی آنکھیں اب پرانی جیسی نہیں تھیں، اب ان میں زندگی کی جگہ اندھیرا تھا، اور جب وہ پاس سے گزرتے تو جیسے مٹی، خون اور سڑان کی بو آتی۔ ایک رات جوش روتے ہوئے آریہ کے کمرے میں آیا۔
पापा ने कहा कि मैं उनके साथ जमीन के नीचे रहूं, वो कहते हैं वहीं रोशनी है। आर्या काम गई। आर्या ने एक रात वालिद को आईने के सामने देखा। रिचर्ड आईने में झांक रहे थे, मगर उनका एक्स उनकी नहीं कर रहा था, बल्कि वो आर्या को देखकर मुस्कुरा रहा था और आहिस्ता से सर हिला रहा था। ये पापा नहीं हो सकते। आर्या ने वालिद के फोन में मौजूद एक खफिया वीडियो चला दी जो हादसे वाले दिन की थी। वीडियो में रिचर्ड जंगल के रास्ते पर खड़े थे। अचानक एक साया नमूदार हुआ जो हवा में तैरता हुआ उनके करीब आया। चीख, हमला और फिर रिचर्ड जमीन पर गिरे और वो साया उनके जिस्म में दाखिल हो गया। कैमरे की तरफ मुड़कर वो मखलूक बोली, आई एम योर डैड नाउ। आर्या ने जब मां को सब कुछ बताया तो एलिसा ने गुस्से से थप्पड़ मार दिया। बस करो आर्या, तुम पागल हो चुकी हो, वो मेरे शोहर हैं। लेकिन उसी रात एलिसा को ख्वाब में रिचर्ड की आवाज आई, एलिसा, मैं मर चुका हूं, जो वहां है वो मैं नहीं हूं। अगली रात जोश गायब हो गया। सारा घर तलाश करता रहा। आखिरकार तहाखाने से उसकी चीख सुनाई दी। जब आर्या वहां पहुंची तो जोश बेहोश था और रिचर्ड या जो भी था उस पर झुका हुआ था, जबान से कुछ पढ़ रहा था और जोश के गिर्द खून का दायरा बना हुआ था। आर्या ने कुरान से आयात सुनानी शुरू किए जो एक मुसलमान दोस्त से उसने सीखी थी, और वो वजूद एक जोर की चीख मारकर पीछे हट गया। आर्या अपने स्कूल की लाइब्रेरी गई जहां एक पुरानी किताब मिली, शैडो चेंजर्स दैट वेयर ह्यूमन फेसेस। इस किताब में लिखा था कि कुछ मखलूकात मरे हुए लोगों के जिस्मों को अपनाती हैं और उनके खानदान में दाखिल हो जाती हैं। उनका मकसद होता है रूहों की फसल काटना। पापा की असली कब्र। आर्या ने कब्र खदवाई। कफन में लिपटी लाश रिचर्ड की थी, लेकिन इसका चेहरा बिगड़ा हुआ, आंखें खली और ये अल्फाज निकले, बचा लो आर्या, वो मेरे जिस्म में कैद है। आर्या ने अपने कमरे में एक दायरा बनाया, रोशनी बंद की और उस मखलूक को सामने बिठाया। उसने आयात पढ़ना शुरू किए, मोमबत्तियां जलाएं और जले हुए बरगद के पत्ते छिड़के। रिचर्ड की शक्ल बदलने लगी, बदन लंबा, आंखें आग जैसी और आवाज गूंजी। तुम अपने बाप को मारते हो आर्या? नहीं, तुम मेरे बाप हो ही नहीं। एक आखिरी चीख, एक जिलजिला और सब कुछ थम गया। कई दिन बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, आर्या ने वालिद की पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में रिचर्ड के चेहरे की जगह खाली थी। नीचे एक जुमला उभर आया, I'll be back when you forget। कभी अगर आपका बाप अचानक वापस आ जाए तो खुशी से गले लगाने से पहले उसकी आंखों में जरूर देख लेना, क्योंकि शायद वो आपको नहीं देख रहा, वो आपको चुन रहा है। आखिरी कॉल। कभी कभी फोन की एक बेल जिंदगी भर की खामोशी ले आती है। कभी कोई आवाज आखिरी मुलाकात बन जाती है। आज की कहानी एक ऐसी कॉल की है जो सिर्फ आखिरी न थी, बल्कि हमेशा के लिए दिल में दफन हो गई। सुनो। आखिरी कॉल, वो लम्हा जब वक्त थम गया। ये कहानी है ज़ारा और उसके मंगेतर अली की। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। शादी की तारीख तय हो चुकी थी, ख्वाब आंखों में सज चुके थे, मगर किस्मत शायद कुछ और ही लिख चुकी थी। एक रात ज़ारा की अली से आखिरी बात हुई। फोन पर अली ने कहा, बस 2 मिनट का रास्ता रह गया है, घर आ रहा हूं, तुम सो मत जाना, कॉल करता हूं। ज़ारा ने मुस्कुरा कर कहा, जल्दी आना, दिल घबरा रहा है आज कुछ अजीब सा। मगर वो 2 मिनट कभी ख़त्म नहीं हुए। अली की गाड़ी को हाईवे पर एक ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसा इतना शदीद था कि अली वहीं दम तोड़ गया। ज़ारा को सब कुछ अगली सुबह पता चला। वो टूट गई, बिखर गई, दिन रात रोती रहती, उसका फ़ोन तक बंद कर दिया गया। हादसे के 3 दिन बाद ज़ारा के मोबाइल पर एक कॉल आई। नंबर अली का था। वो हैरान हुई, मोबाइल को घूरती रही, डर के मारे जवाब नहीं दिया। मगर फिर कॉल दोबारा आई। ज़ारा ने कपकपाते हाथों से कॉल उठाई। दूसरी तरफ अली की आवाज़, ज़ारा मैं पहुंचने वाला हूँ, तुम जाग रही हो ना? ज़ारा चीख पड़ी, अली ये तुम हो? वो पूरी रात सो ना सकी। अगली रात
फिर वही कॉल, बस 2 मिनट का रास्ता रह गया है, तुम सो मत जाना। ज़ारा पागलों की तरह रोने लगी। फोन आता रहा, रोजाना, रात के इसी वक्त। एक रात उसने हिम्मत की, इसी जगह पहुंची जहां अली का एक्सीडेंट हुआ था। वहां पहुंचते ही इसका फोन बजने लगा। इस बार आवाज में सिर्फ अली की सांसें थी, घबराहट, दर्द और फिर एक आखिरी जुमला, ज़ारा। मैं आ नहीं पाया, बस ये कॉल मेरी आखिरी थी। और फिर फोन खुद ब खूब बंद हो गया। ज़ारा बेहोश हो गई। जब होश आया तो वो अस्पताल में थी, लेकिन उसका फोन हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। वो नंबर कभी दोबारा नहीं आया, ना कॉल ना मैसेज, बस यादें और वो आखिरी कॉल जो हमेशा के लिए उसकी रूह पर नक्श हो गई। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक दुख है जो हर इस इंसान ने महसूस किया है जिसने किसी को खोया हो। अगर कभी आपके फ़ोन पर किसी मरने वाले का नंबर आए तो जान लीजिए कुछ बंधन मौत से भी नहीं टूटते। घड़ी की सुइयां रात के 3 बजा रही थीं। पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। चांद की हल्की रोशनी नीना के कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थी। नीना, जो अक्सर रात देर तक फोन इस्तेमाल करने की आदी थी, इस रात कुछ अलग ही वीडियोस देख रही थी। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही थी जिसका कैप्शन था, अगर तुमने इसे आखिर तक देख लिया तो तुम्हारी बारी आ सकती है। नीना ने कहकहा लगाया, लो जी, अब टिकटॉक वाले भी फिल्मी हो गए हैं। मगर जैसे ही वीडियो ख़त्म हुई, फ़ोन की स्क्रीन अचानक साया हो गई और इस पर एक पैगाम भरा, नीना शर्मा, तैयार हो जाओ। नीना का खून खुश्क हो गया। फ़ोन अचानक वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। नीना ने चीख मारी और फौरन फ़ोन ज़मीन पर फेंक दिया, मगर इसकी आवाज़ अभी सुनाई दे रही थी, एक पुरअसरार भारी आवाज़, नया, अब तेरी बारी है। माँ बेटी की चीखो पुकार। नीना दौड़ती हुई अपनी माँ के कमरे में पहुंची, रोते हुए चलाई, मम्मी, रितु दीदी कहाँ गई? फोन बंद नहीं हो रहा, कोई है, फोन में कोई है। दीपा, जो हमेशा अपनी दोनों बेटियों को मोबाइल फोन से दूर रखने की कोशिश करती थी, घबराकर उठ बैठे। वो जानती थी कि रितु, जो 3 दिन पहले अचानक लापता हुई थी, आखिरी बार इसी फोन पर लाइव वीडियो कर रही थी। दीपा ने बगैर कुछ सोचे समझे फोन को उठाया और उसे पानी की बाल्टी में फेंक दिया, लेकिन पानी का रंग सुर्ख हो गया। पानी की सतह पर एक चेहरा नमोदार हुआ, रेतु का चेहरा, चेहरे पर धीमी मुस्कुराहट और आंखों से टपकता खून। दीपा की चीख निकल गई और वो वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। 1 हफ्ता बाद रितु के लापता होने, नीना के कमरे से चीखें आने और दीपा के बेहोश हो जाने के बाद पूरे महल्ले में एक ही जुमला गूंजने लगा, शर्मा फैमिली के घर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। गांव वालों ने तब से ना नीना को देखा ना दीपा को। घर का दरवाजा, खिड़कियां हमेशा के लिए बंद और कभी कभार रात के वक्त अंदर से हिंसी की आवाजें सुनाई देते हैं, जैसे कोई वीडियो देख रहा हो। चंद नौजवान लड़के जो खौफनाक जगहों की वीडियोस बनाते थे, को सुनकर उस घर में वीडियो बनाने पहुंच गए। यही वो घर है जहां टिकटॉक की भूतनी रहती है। लाइव वीडियो अब भी इस घर से आती है। चलो ना अंदर, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड करेंगे। वो आहिस्ता से दरवाजा धकेल कर अंदर दाखिल हुए। हर तरफ खामोशी थी। फर्श पर जगह जगह जले हुए मोमबत्तियों के निशान थे। दीवारों पर किसी ने सुर्ख रंग से लिखा था, अब तुम हो। एक कमरे का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद खुला। अंदर एक फोन जमीन पर पड़ा था। इस पर लाइव वीडियो चल रही थी, लाइव ऑन टिकटॉक 2.1 एंड वॉचिंग। कैप्शन, नया मेहमान, नई कुर्बानी। फिर अचानक कमरा बंद हो गया। चीखें, भाग दौड़ और फिर मुकम्मल खामोशी। 5 में से सिर्फ एक लड़का जिंदा बाहर निकला। वो ना बोल रहा था ना रो रहा था, बस इसके होंठ एक ही जुमला दोहरा रहे थे, फोन में कोई है, फोन में कोई है। अगर कभी आपको कोई ऐसी वीडियो, कोई ऑडियो, कोई लाइव सेशन मिले जिसमें एक तुम मुझे देख सकते हो, तो जो तुम्हें देखने देता है वो तुम पर कब्जा भी कर सकता है। कभी कभी कुछ रसूमात वक्त के साथ खत्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ रसूमात ऐसी होती हैं जिन्हें वक्त भी भूलने से डरता है।
आज की कहानी एक ऐसे ही गांव की है जहां दुल्हन तो आती थी मगर चेहरा कभी नहीं दिखाती थी। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि दुल्हन आई ही नहीं, सिर्फ घूंघट आया। कहानी शुरू होती है पंजाब के एक पुरअसरार और सुनसान गांव चौकनिथार में एक रस्म बरसों से चली आ रही थी। जब भी किसी घर में शादी होती, दुल्हन का चेहरा पूरे शादी के दिनों में कोई ना देखता, घूंघट हर वक्त चेहरे पर रहता। ये घूंघट सिर्फ दुल्हन का नहीं था, बल्कि एक रिवाज था, एक किस्म थी, और जो इस रस्म को तोड़ता वो जिंदा नहीं बचता था। ये रस्म क्यों थी, ये किसी को नहीं मालूम था। कई साल पहले गांव की सबसे खूबसूरत लड़की मनीषा की शादी होने वाली थी। शादी वाले दिन लड़की ने जिद की कि वो घूंघट नहीं डालेगी। उस रात उसकी लाश किनवे से निकली, आंखें खुली हुई, चेहरे पर वहशत जमी हुई, और सर पर उसका शादी का जोड़ा था, लेकिन घूंघट गायब था। लोगों ने कहा रस्म को तोड़ने पर किसी ने इसे मार दिया। कुछ ने कहा किसी ने नहीं, किसी चीज ने। वक्त गुजरता गया, लोग डर गए, और इसके बाद कोई दुल्हन बगैर घूंघट के नहीं देखी गई। शहर से एक जोड़ा, रीमा और उइस, इस गांव में अपना पुराना खानदानी घर देखने आया। रीमा को पुरअसरार चीजों का शौक था और उइस एक वी लागर था। दोनों ने फैसला किया कि वो यहां शादी करेंगे, पुरानी रस्मों को खत्म करके कुछ नया करने के लिए। बूढ़ी दाई फातिमा ने उन्हें लाख समझाया, बच्चे, रस्में तलवारें होती हैं, मजाक नहीं। इस गांव में घूंघट का मतलब इज्जत नहीं, जिंदगी है। लेकिन रीमा हिंसी, मेरी शादी में मैं घूंघट नहीं डालूंगी, और अगर ये रस्म इतनी सच्ची है तो वीडियो में रिकॉर्ड हो जाएगी, है ना। शादी का दिन आया और रीमा ने खूबसूरत सुर्ख लिबास पहना मगर घूंघट नहीं डाला। रात के 8 बजे शादी की वीडियो बन रही थी, मेहमान हिंस रहे थे, लेकिन अचानक लाइट चली गई। अंधेरे में शोर मच गया। जब लाइट आई, रीमा वहां नहीं थी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ने पर कमरा खाली था, बस एक घूंघट फर्श पर पड़ा था, खून आलूद। अगले दिन पुलिस आई, तफ्तीश हुई, कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की गई। रिकॉर्डिंग में सब कुछ था सवाए उस लम्हे के जब रोशनी गई थी। वीडियो फ्रीज हो गई थी, और फिर जैसे कोई चेहरे के बहुत करीब आ जाए, बस एक धुंधला साया नजर आया और एक आवाज, जैसे किसी ने सरगोशी की हो। घूंघट को चेहरा चाहिए, चाहे जान लेकर ही क्यों ना हो। महीने गुजर गए। ओविस वापस शहर चला गया। रीमा कभी नहीं मिली, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। शादी के 6 महीने बाद गांव में एक और शादी हुई। इस बार दुल्हन ने बगैर घूंघट शादी की, शायद रीमा की बातों से मुतासिर होकर। शादी की रात वो अपने कमरे में गई। सुबह दुल्हन तो ना मिली, लेकिन बेड पर एक पैगाम खून से लिखा था, अब घूंघट खुद आता है। कुछ दिन बाद गांव के चंद बच्चों ने कन्वे के पास एक औरत को बैठे देखा। सर पर सुर्ख जोड़ा, चेहरा नहीं दिखता था, सिर्फ घूंघट था। और जब बच्चे करीब गए, घूंघट ने खुद बखुद हिलना शुरू कर दिया। बच्चों में से एक ने बताया कि इसने एक पल के लिए चेहरा देखा। वो रीमा थी। आंखों में खून, होंठों पर जख्म, और चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट। कहा जाता है कि जब भी कोई इस रस्म को तोड़ता है, घूंघट खाली नहीं रहता, वो खुद किसी को अपना चेहरा बना लेता है। अब भी कभी कभी चौकनिथार के उस पुराने घर में रात को रोशनी जलती है, और एक दुल्हन जो कभी नहीं हंसती, खिड़की के पीछे बैठी सिर्फ एक चीज चाहती है, चेहरा, बस चेहरा। कुछ रवायात सिर्फ रस्म नहीं होते हैं, बल्कि यादगारें होती हैं। उनके पीछे कोई दास्तान, कोई कुर्बानी छुपी होती है, और जो तारीख को नजरअंदाज करता है वो खुद तारीख बन जाता है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द आएंगे एक और दर्द, एक और राज और एक और खौफनाक कहानी के साथ।